फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक अमंग द स्टूडेंट्स। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में कवर करने जा रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले आई विल टॉक अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के इस टॉपिक में मिलने वाली है। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट प्रोजेक्टाइल। A body thrown with some initial velocity and then allowed to move under the action of gravity alone is known as projectile। कहने का मतलब, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं और उस वेलोसिटी के वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उस ऑब्जेक्ट को वी कॉल प्रोजेक्टाइल। There are some different types of projectiles are shown here. In this pictorial diagram you can see that here projectile is thrown from the ground and this is the path followed by this projectile, and in this second pictorial here projectile is thrown from the top of the tower and this is the path followed by the project. We can project a body in two ways. Number one, it can be projected in a horizontal direction from a certain height, the case as shown in this figure. And second, it can be projected in a vertical direction from the ground at an angle, the case as shown in this figure. Some important points. तो dear students, आप इस pictorial diagram के ऊपर गौर कीजिए। The message very clear that here the projectile that is projected in horizontal direction and this is the path followed by the projectile। मान लीजिए पर्टिकुलर मोमेंट पे जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज एट पॉइंट P, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज x, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज y, और here x and y are the coordinate corresponding to that time and these coordinates define the motion of the projectile। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर की अलोंग दिस एरो, तो इट मीन जो वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द सेकंड द वर्टिकल कंपोनेंट। इन दिस फिगर ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। मान लीजिए एट पर्टिकुलर मोमेंट तो प्रोजेक्टाइल की पोजिशन है एट पॉइंट P और दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile and this is the vertical distance covered by the projectile, and here again the velocity component resolved into two component, one is horizontal component and the second is the vertical component. अब what we conclude? We conclude that the projectile undergo a vertical motion as well as horizontal motion. The second point to be note that the two components of the projectile motion are vertical component and horizontal component. In this pictorial diagram, you are notice that a projectile is projected with initial velocity u and it resolved into two components, that is ux and uy. Ux that is a horizontal component and uy is that is a vertical component. But we note that एट एवरी पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो ux है दैट इज अ कांस्टेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज वेरिएबल। जो मैग्नीट्यूड लेंथ है वेक्टर की क्लियरली इंडिकेटिंग दैट जो ड्यूरिंग एसेंट मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड रिड्यूस टू 0 then it reach at maximum height. After in descending motion there is again continuously increase in the vertical velocity component. It means जो
horizontal velocity component है that is a constant, whereas जो vertical velocity component है that is a variable, and that is due to gravity. We just conclude that when a projectile projected, then it undergo two types of motion simultaneously, that is a horizontal motion and the second is the vertical motion. These figures exploring case of horizontal motion. What we observe from this figure? We observe that at every time, every moment, every point, जो horizontal component है velocity का, in both the case that is a constant. The message is very clear that जो velocity का जो horizontal component है that always remains constant, and the second message is very clear that the projectile is free from any kind of forces. It means no kind of forces are acting on the projectile when describing horizontal motion. Right? The third point is that जो gravity का effect है here is that is zero, because we are talking about the horizontal motion. अब ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ रहा हूं. जो ग्रेविटी है कब किस सब्जेक्ट के ऊपर कब एप्लीकेबल होती है? इधर जो मोशन है इधर वर्टिकली अपार्ट और इधर वर्टिकल डाउनवर्ड. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट. यदि किसी प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मोशन डिस्क्राइब की जाती है या तो वर्टिकली अपार्ट या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस केस में जी इज एप्लीकेबल. नाउ दिस फिगर्स एक्सप्लोरिंग द केस ऑफ वर्टिकल मोशन. इन फिगर्स के ऊपर आप गौर कीजिए, आप मैसेज वेरी क्लियर दैट एट एवरी पॉइंट एंड एवरी मोमेंट जो वेलोसिटी, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज अ वेरिएबल इन बोथ द केस. इट मींस जो वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज अ वेरिएबल, एंड द सेकंड मैसेज वेरी क्लियर दैट इट इज जो प्रोजेक्टाइल है जब इट इज अंडर द मोशन, तो it undergoes the kind of forces. It means some forces are acting during the projectile motion, and here G is applicable क्योंकि we are talking about the vertical motion. और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया इस केस में कि G कब एप्लीकेबल होता है, जब हम वर्टिकल अपवार्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं. तो these are the some concluding remarks of both type of motion. Dear friends, the next most important article is that motion of projectile when thrown horizontally. Most of the time जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछा जाता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली. तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिफरेंट पार्ट्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन, फिर हम ड्राइव आउट करेंगे इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, देन वी विल ड्राइव इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाउ वी कैन ड्राइव आउट द इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन. हियर इज अ प्रोजेक्टाइल दैट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस इज द पाथ कवर्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल. मान लीजिए एट पर्टिकुलर मोमेंट द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट P. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज x और जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज y. एज वी नो दैट व्हेन प्रोजेक्टाइल मूव देन इट under the influence of two types of velocity component, that is the horizontal component ux in our case and uy that is the vertical component. As we know that जो horizontal component है velocity का that always means constant, और here uy that is a variable, that is a variable velocity, and at point initial point जो uy है that is a zero, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज अ जीरो. जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबको एक सिमिलर पैटर्न में, एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजिशन टाइम.
and in our present case here s is equal to y, क्योंकि we are talking about the vertical motion, जो vertical distance है covered by that's the y, right? as we know that जो u है that is uy, और जो यहाँ पे जो initial velocity है at the top of the tower that is a 0, vertical motion है, it means g is applicable. तो a that is equal to acceleration due to gravity that is applicable in this case. और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, राइट? जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे एंड दैट व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट, दिस फैक्टर रिड्यूस टू 0, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम इस ढंग से लिख सकते हैं. और ये है आपके पास इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन. अब नेक्स्ट जो फोकस रहेगा इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज द x. एंड अगेन एज वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट केस जो मेरे पास जो s है दैट इज x, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और u जो है दैट इज ux, that is a horizontal velocity, क्योंकि horizontal velocity that is always constant as we know. और horizontal motion है तो it means acceleration due to gravity that is 0. As I discussed to you to earlier, जो acceleration due to gravity कब applicable होता है? जब particle या तो vertical upward या vertical downward motion describe करता है, तभी G applicable है. ये सारी की सारी वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 3 can be written as. अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है and it means this factor reduced to 0 and can be written as x is equal to ut, और this is equation for horizontal motion. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोकस रहेगा दैट इज इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी. In this case we have to take the help of equation number 4 and equation number 2. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का आप ध्यान दीजिए. इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी मीन्स इस इक्वेशन में वी हैव टू स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन x एंड y. x और y के बीच क्या रिलेशन है? तो इक्वेशन x के लिए थी आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और y के लिए थी इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों के बीच वी हैव टू स्टेब्लिश द रिलेशन. तो इन दोनों के बीच हम रिलेशन किस ढंग से स्टेब्लिश कर सकते हैं? इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, अगर 4 से आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो y और x के बीच रिलेशन अपने आप आ जाता है, और वही हमने करने जा रहे हैं. 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 g, t की वैल्यू यहाँ पुट की दैट इज x ओवर u का होल स्क्वायर. अगले स्टेप में इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, एंड देन व्हाट वी ऑब्जर्व, y और x के जो दो वेरिएबल हैं इनके बीच किस तरह का रिलेशन आ रहा है? y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. अगर इस तरह से रिलेशन स्टेब्लिश होगा, दो वेरिएबल के बीच रिलेशन इस तरह से स्टेब्लिश होता है, तो इट मीन्स जो पाथ फॉलोड बाय दैट पार्टिकल दैट इज अ पैराबोलिक. ओके, और यही हमने निकालना था. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of the present case that is you have to drive out the expression for time of flight. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है. जब प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया एंड बिफोर टू हिट द ग्राउंड, जितना टाइम एयर में रहा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. इट मीन टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल सिंस इट्स प्रोजेक्शन बिफोर टू इट्स हिट टू द ग्राउंड. और दिस टाइम इज टेकन बाय लेटर कैपिटल T, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हियर जब प्रोजेक्टाइल ने यहां से लेके यहां तक का कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज इक्वल टू h, इफ h इज द हाइट ऑफ द टावर, राइट? एज वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगेन अब इस इक्वेशन में जो s है दैट इज इक्वल टू h इन आवर केस. जो वर्टिकल डिस्टेंस है कितना कवर किया, क्योंकि फ्रॉम द टॉप टू ग्राउंड की जो जर्नी है उसमें टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर. और हियर
जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज अ 0 और a इज एप्लीकेबल हेयर, और जो टोटल टाइम है दैट इज कैपिटल T, क्योंकि दिस इज अ टोटल टाइम। ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन इस ढंग से आ जाती है। और दिस फैक्टर रिड्यूस टू 0। अब अगले स्टेप में दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमारा फोकस T पे है तो हम क्या करेंगे, T को एक तरफ बाकी सभी को दूसरी तरफ, एंड देन फाइनली T become to under root 2h over g. This is the equation for time of light. The next part is that is the horizontal range. सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल रेंज को अंडरस्टैंड करना है। जब प्रोजेक्टाइल टावर्स के टॉप से प्रोजेक्ट किया तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट covered by the projectile in total time capital T. That's very important point, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया, दैट इज कैपिटल T। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लिया दैट इज कैपिटल T, तो इट मीन स्मॉल t चेंज टू कैपिटल T इन दिस केस। तो यहाँ पे जो s है दैट चेंज टू r ux, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में जो g की वैल्यू दैट इज 0 और t दैट इज कैपिटल T, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देन वी गेट दैट इज uxt प्लस 1/2 0 t स्क्वायर, और दिस फैक्टर रिड्यूस टू 0, एंड इन नेक्स्ट केस दैट इज r इज इक्वल टू xt। और कैपिटल T के लिए हमने इक्वेशन पहले ड्राइव आउट करके रखी है, दैट इज जो यहाँ ग्रीन टेक्स्ट में दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h ओवर g। अब जो t की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इक्वेशन आ जाती है। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पार्ट 2 horizontal motion when the projectile projected by making an angle theta with the ground. Thanks for your time.